আসলে বাই ইলেকশন 이번에 আগরতলা তিতামান বর্দুয়ারা니 কংগ্রেসनि बाथायनाय नमिनेशन ब्लाइ याफाका आबोनि याखौल' कक्टमाथुनि बिस्कांगाव खोखेंका सुधीर बाई बर्मन आबोनि लगे खोखेंका কংগ্রেসनि बारजावा थांनाय इनचार्ज डॉक्टर অজয় কুমার। আজকে প্রার্থী পদ আপনি মনোনয়নপত্র জমা দিলেন, এখানে আজকে প্রার্থী হিসেবে এর আগে অনেকবার দিয়েছেন, তো আপনার যে প্রতিক্রিয়াটা সেটা কি থাকবে? না, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আমার আগে প্রার্থী দিয়ে গেছেন দেখলাম, আর বাকিগুলোর নামগুলো আমার দেখার সুবিধা হয়নি। তো কন্টেস্ট হবে, আমরা তো লড়াইয়ে মাঠে আমরা আছি। তবে একটা জিনিস বলতে পারি যে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের মধ্যে আমি দেখেছি এই পথ চলার সময় পদযাত্রার মাধ্যমে মানুষের ভেতরে যে একটা প্রচণ্ড রাগ, অভিমান, আক্রোশ ভেতরে পোষছে মানুষ, সেটা আমি অনুভব করতে পেরেছি। এবং সেই সুবাদে আমি যখন প্রথমে রিয়েকশন দিচ্ছিলাম, সেই সুবাদে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের জয় এই দুটো আসলে কেউ আটকে রাখতে পারবে। আমরা দারুণভাবে কনফিডেন্ট, মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসা পুঁজি করেই কথাটা বলছি, অহংকার নয়, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। অশোক সিনহা বললেন যে দীর্ঘদিন আপনি যেই আসনে ছিলেন, মানে সেটাই তাদের প্লাস পয়েন্ট, যে এই কারণেই আপনাকে ভোট দেবে না মানুষ। অনেকদিন ছিলাম বলে তিনি উদাহরণ টেনেছেন 25 বছর বামেরা ছিল বলেই তাদেরকে পরিবর্তন করা হয়েছে, ঠিক একই রকম ভাবে আপনি টানা 4 বার ছিলেন বলে আপনাকে পরিবর্তন করা হবে। মানুষের নির্ণয়। অশোক সিনহা এরকমটা বলেছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ কিছুদিন আগেও আবার কয়েকটা কাজে দারুণ প্রশংসা করেছেন। এখন প্রার্থী হয়েছেন বলে হয়তো বলতে হয় বলেছে, এটাকে সিরিয়াসলি আপনারা নেবেন না, কেমন? জয় নিয়ে কত বছর আসতে পারে? জয় নিয়ে কত বছর আসতে পারে? 10%. I am damn confident that I am going to win with a thumping majority. পুরো রকমের তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা হামলা হুজ্জুতি দেখা গিয়েছে, আমরা দেখেছি নিউজ কভারেজ। এটা তো তাদের ইউনিফর্ম, যে সন্ত্রাস ছাড়া এরা বাঁচতে পারবে। সন্ত্রাস ছাড়া মানুষেরও বিশ্বাস নেই। এগুলো মানে কি? জনসাধারণের উপর তাদের আস্থা, বিশ্বাস নেই। গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের শেষ কথা জনগণ। জনগণকে চমকাবে, ধমকাবে, মারবে, আগুন লাগাবে, ফ্ল্যাগ পুড়িয়ে দেবে, ব্যানার কেটে দেবে, নষ্ট করে দেবে, ড্রেনে ফেলে দেবে। যেখান থেকে আমরা মিছিলটা শুরু করলাম 79 টিলায়, সেখানে আপনারা দেখেছেন, ফুটেজ পেয়েছি আমি জানি না, আমাদের কালকে ওখানে যে ফ্ল্যাগ লাগিয়েছিল সবগুলোকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তো কালকে আমাদের ওই অভয়নগরে আমাদের কয়েকটা ফ্ল্যাক্স কেটে দিয়ে চলে গেছে, স্ট্রাকচারে রয়ে গেছে, আমাদের ছবি টবিগুলো সমস্ত কেটে নিয়ে চলে গেছে। তো এটা করে একটা ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু মানুষের বিশ্বাসটুকু পুনরায় আস্থা, বিশ্বাস মানুষে ফিরে পাবে না। দিন কি দিন এরা মানুষ থেকে ডিটেচ হচ্ছে। এবারের উপনির্বাচন কি ভবিষ্যৎ রাজ্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে? না, প্রভাবিত করবে। মানুষ এদের পতন আরো সুনিশ্চিত হবে। এবং দেখবেন এদের অবস্থা কি হয়। খুব করুণ চিত্র। একটা শাসক গোষ্ঠী কোথেকে লোক এনেছে আমাদের আগরতলা 6 আর 8 শাসক গোষ্ঠী, সেটা আমরা করতে পারি। এরা কোথেকে, মানে সোনামরা, উদয়পুর, বিলোনিয়া, সাবরুম থেকে শুরু করে এবং কোনো জায়গা নিয়ে এরা লোক আনেনি। আমরা কনফিডেন্ট, মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখছেন এবং আগামী দিনেও রাখবেন। জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র পার্টি যে মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করবে বলে করবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আজকে রাজ্যে এসেছেন, সেটা নিয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মী সমর্থকদের, সেটা কি কোনোভাবে? উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মীদের থেকেও যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন তাদের খুব খুশি হয়েছে, খোরাক পাবে। কংগ্রেস কতটুকু প্রস্তুত, একদম ইলেকশনে কতটুকু প্রস্তুত থাকবে কংগ্রেস? 10% প্রস্তুত। এবং উনি এখন কথা বলবেন। আমার তো सुदीप जी और आशीष जी तो जीतेंगे, लेकिन त्रिपुरा के जनता को सोचना है पूरे देश में क्या हुआ। आज देखेंगे पूरे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, और अब आज कतर में हमारे उपराष्ट्रपति हैं और वहाँ का सरकार ने डिनर भी कैंसिल कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। भारत की इज्जत कभी इस तरह से जो है इस तरह से खराब कभी नहीं हुई। पहली बार भारत के इतिहास में बीजेपी ने इस देश का जो है ना नाक कटवा दिया। कभी जो है
उपराष्ट्रपति या किसी भी सरकारी पदाधिकारी का डिनर विदेश में कैंसिल नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुआ। इसका मतलब है वेंकैया नायडू गो होम। देश में 70 साल में कभी ऐसा बेइज्जती इस देश का नहीं हुआ। तिरंगा को जो अपमानित किया बीजेपी ने, इसलिए अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम कर करके देश में दंगा कर करके सिर्फ सत्ता पाने के लिए अब पूरे दुनिया में हमारी इज्जत नहीं रही है। तो आप देख लीजिए, सुदीप और आशीष उस कांग्रेस कल्चर के एक बेटा है। देश को एक रखना है। और पूरे त्रिपुरा में मैं बता रहा हूं, आप एक ही सवाल है लास्ट में, 5 साल पहले बीजेपी ने त्रिपुरा में क्या वादा किया? एक सब वादा निकाल के देखो, एक भी नहीं किया। इतने बेशरम है। उसका सिर्फ इतना कहना है हिंदू मुस्लिम कर करके जो है लोग को पागल करो, देश को जलाओ, गृह युद्ध शुरू करो और भारत जो है खत्म हो जाए। ये बीजेपी का फाइनल गोल यही है, भारत को खत्म करना, भारत जलाओ, यही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देश बचाना सोच लीजिए। ये शुरुआत है। विदेश के लोग हमारे उपराष्ट्रपति को घर वापस भेज रहे हैं। ये बेइज्जती की शुरुआत हो गई इस देश में। कोई पार्टी जीते है, देश बचना चाहिए। कोई भी सत्ता में है, भारत जीवित होना चाहिए। तो 70 साल में किसी ने नहीं कर पाया, मोदी जी आज करके दिखा दी सर, भारत का नाक काट दिया। सर, सुरमा में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देना, ये क्या 2023 का इंडिकेशन है? ठीक है, जो भी पार्टी हमारे विचारधारा से सिमिलर है, जो भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा से और देश से भगाएंगे, हम एक दूसरे से बातचीत करके रास्ता निकालें। क्योंकि हमारा सबसे प्रिय है त्रिपुरा बचे और भारत बचे। देखिए, मैं तो आईपीएस में रह चुका हूं, मैंने डॉक्टरी भी किया है, मैं सांसद भी रह चुका हूं। त्रिपुरा की जो स्थिति है ना, मैं बता रहा हूं, भारत नहीं बचे। बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीब जो है अपना जो है खाना खा नहीं पा रहा है, दूध का दाम, और हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही कर रहा है। हम पागल है क्या? हर जगह खोदने लगे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि कहां पर है भगवान के नाम पर। ये कोई हिंदू सनातन धर्म है कि भाई को मारना, भाई के जो है को काटना, बहन के जो है बलात्कार करना? ये कोई हमारा धर्म है क्या? ये जो हम लोग को ये जो उपदेश देना है? नहीं सर, क्वेश्चन ये है कि सुरमा में जो अभी चुनाव उपनिर्वाचन हो रहे हैं, वहाँ पे जो अलायंस का कोई एक चित्र नजर आ रहा है कांग्रेस के साथ, क्या वो असल में ऐसा कुछ है या फिर नहीं? नहीं, देखिए, हम तो लाइक माइंडेड पार्टी के साथ हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। प्रद्युत जी हमारे अच्छे दोस्त भी है, अच्छे लीडर है। बातचीत हर जगह पॉलिटिक्स में होता है। हमारा इतना ही कहना है कि सुरमा में बीजेपी को वहां से साफ करेंगे, जुबराज नगर में बीजेपी को साफ करेंगे। क्योंकि आपको देश बचाना, मैंने वेंकैया नायडू को बात बताई ना, मैं बात बता रहा हूं पूरे गंभीरता के साथ। हमने देश के लिए गोली भी खाया, मैं तो बुरी तरह से घायल भी हूं, राष्ट्रपति पदक भी मिला। मैं बता रहा हूं कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए सुदीप और आशीष को जिताइए। सचमुच में लास्ट में इतना ही कहूंगा, विप्लव देव जी जो करप्शन से हटाया, वो करप्शन किसका था? बीजेपी का। बीजेपी ने करप्शन में यूज कर लिया, विप्लव को फेंक दिया। विप्लव ने तो पैसा किसके लिए कमाया? बीजेपी के लिए। बीजेपी का काम खत्म, विप्लव खत्म। तो विप्लव को यूज किया। और दूसरे जो दोनों कैंडिडेट के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो कैंडिडेट हाथ नहीं मिल सकता, गले नहीं लगा सकता है, कभी पब्लिक से कोई काम नहीं किया, क्या अगरतला की जनता वैसे लोग को वोट देगा जो जिसको पब्लिक से मतलब ही नहीं है, गला नहीं लगाएगा, कभी चाय नहीं पिलाया? दोनों चीफ मिनिस्टर और ये डॉक्टर मिस्टर अशोक, वैसे लोग को आप चाहते हो या ऐसे लोग को चाहते हो जो सुदीप जो गला लगता है गरीब से, जो दुख दर्द में जो 24 घंटा है, जो एमएलए हॉस्टल में रह करके जो है ना सबका दरवाजा खुला हुआ है, वैसे आदमी चाहिए? आप चाहे के लीजिए। आपको जिस तरह से आपको जो एसी में बैठने वाला चोर को चुनना है तो चुनिए, आपके ऊपर है। हमारा क्या है? चोर को चुनना है, एसी में बैठने वाले को, तो चोर को चुनिए। ठीक है, थैंक यू।